Okay. So in our previous classes, we have studied about the simple introduction to coordinate geometry. That is, what is plane, what is coordinate geometry. In coordinate geometry, we will see two things. That is, two perpendicular lines which are known as coordinate axis. The horizontal line is known as x-axis and the vertical line is known as y-axis. Do you remember? Okay. In the coordinate axis there are two axes that is known as coordinate axis. Okay, and the horizontal line is known as x-axis and the vertical line is known as y-axis. And the intersecting point of these two line is known as what? Origin. The intersecting point of these two line is known as origin. And also these two coordinate axes divide a plane into four quadrant. Divide a plane into four equal section, and each section is known as quadrant. This one is known as first quadrant, this one is known as second quadrant, this one is known as third quadrant, and this one is known as fourth quadrant. Just quick revision. Okay. Then what is coordinate? A set of values that represent the exact position, or the coordinate is called the exact position on the coordinate plane is called the coordinates. Okay. So let's move to the next point. That is our next class of coordinate geometry. That is lecture 2. Okay. Let's go to the lecture 2. So what is there in lecture 2 for us? Let's see. ठीक है, ध्यान से देखिएगा हम क्या क्या पढ़ना है आज. The first thing that we have to study in our today's class, that is ordered pair. Okay, ordered pair. So what is order pair? What is order pair? Let's see. Two numbers, two numbers written, two numbers written in a certain order. Two numbers written in a certain order. ठीक है. Under parenthesis, parentheses. What is parenthesis? Parenthesis is a bracket written under parenthesis, separated by commas. Separated by comma. ठीक है. So what is that? ध्यान से समझिएगा. टू नंबर्स. ऑर्डर पेयर क्या है? सबसे पहला पेयर. व्हाट इज पेयर? पेयर मींस दो. दो चीजों को साथ में हम लोग क्या बोलते हैं? पेयर. दो चीजों को साथ में हम लोग क्या बोलते हैं? पेयर. ध्यान से समझिएगा चीजों को. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. टू नंबर्स. ऑर्डर पेयर मतलब सबसे पहला चीज पेयर होगा. पेयर मतलब दो होगा. सो इन दिस ऑर्डर पेयर वी विल हैव टू नंबर्स, and two numbers written in a certain order. That means that order is very important for us, and under the parenthesis separated by commas. For an example, it is written as x comma y. Here this bracket is known as parenthesis. Theses. This bracket, have you seen this bracket before? Okay, the name of this bracket is parenthesis, or this is also known by first bracket. This is also known by first bracket. Okay, so this bracket is known as parenthesis, and these two numbers are separated by what? Commas. These two numbers are separated by comma. So this kind of number is known as order pair. This is known as what? Ordered pair. This is known as order pair, and here order is very important. Here order is very important. Order is important का मतलब क्या हुआ? That means let's for an example say 1 comma 2. 1 comma 2 is, it is in a particular order. It is in a particular order. That means the first number is 1, in second number is 2. If we change the both the numbers, that means 2 comma 1, then these two things will become not equal. These two order pairs will become not equal because I have changed the order. इसका था 1 comma 2, इसको ऑर्डर को चेंज करके मैंने पहले 2 लिख दिया, बाद में 1 लिख दिया, तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता. इसमें ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्डर बहुत जरूरी होता है और ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो हम लोग इसको अलग अलग करके नहीं लिख सकते. हम ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं कि 1,2 अगर है तो उसको किसी 3,4 के बराबर नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों नंबर ही अलग अलग हो जाएगा. इधर फर्स्ट में 1 लिखा हुआ है, इधर फर्स्ट में 2 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है, इधर सेकंड में 2 लिखा हुआ है, इधर सेकंड में 4 लिखा हुआ है. अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड जस्ट राइट नाउ? So this is known as order pair. That means two numbers written in a particular order under the bracket and separated by the commas. Okay. So इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Order pair. इसको हम लोग बोलते हैं order pair. This is known as order pair. ठीक है. अब ध्यान से समझिएगा, इस order pair को अगर हम equal कर दें, then what is going to happen? अगर दो order pair को हम लोग equal कर दें, that is known as equality of order pair. That is known as equality of order pair.
इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। अगर दो ऑर्डर पेयर को इक्वल कर दिया जाए तब क्या होगा, दैट मीन्स अगर ऐसे लिख दिया जाए कि a कॉमा b इज इक्वल टू m कॉमा n, ये तभी हो सकता है जब इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट बराबर हो। दैट मीन्स a विल बिकम, दिस इज ओनली हैपन when a will become m, यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट बराबर हो एंड इसका सेकंड एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट जो है वो बराबर हो। दैट मीन्स b will become equal to n। तो ये तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं इधर देख सकता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे को ऐसा दिया जाए कि 2,3 is equal to a, b, then the value of a will be equal to 2 and the value of b will be equal to 3। तभी दो नंबर इक्वल हो सकता है, अदरवाइज ये इक्वल नहीं हो सकता। वन सेकेंड, टाइम टेबल नहीं देखा है। जाओ अमरंजय सर से पूछो, नीचे होगा क्लास। ओके, सो दिस इज गोइंग टू हैपन। अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं ऐसे कि x प्लस 2 कॉमा 3 इक्वल टू 5 कॉमा y प्लस 9 ऐसा दिया गया है और हमें बोला गया है कि फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y ऐसा बोला गया है। ये ऑर्डर पेयर है। अगर ऑर्डर पेयर है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, बराबर होगा। दैट मींस x प्लस 2 will become equal to 5। Therefore, the value of x will become 5 minus 2. That means the value of x will become equal to 3। और इसका सेकंड एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट बराबर होगा। दैट मींस 3 will be become equal to y plus 9। That means 3 minus 9 will become equal to y। That means minus 6 become equal to y। That means the value of y is equal to minus 6। तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया 3, y का वैल्यू आ गया minus 6। क्या आप लोग को समझ में आया मैंने क्या बताया कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब हो सकता है? Okay, okay, very good. Then I'm having one question for you. Try to solve this question. That is question: find value of a and b. Find a and b. Find the value of a and b. Okay. The question goes like this: 2a plus 5 comma 3 equal to 4 comma 5b minus 1. Find the value of a and b first. ओके, चलिए देखते हैं। एनीवन एल्स? पहला का वैल्यू -1/2 एंड बी का वैल्यू 4/5। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। ओके, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर दिया गया है एंड दिस टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। इफ टू ऑर्डर पेयर्स बिकम इक्वल देन ईच एलिमेंट दैट इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर विल बिकम इक्वल। दैट मींस 2a plus 5 will become equal to how much? 4। So 2a will be equal to 4 minus 5। That means 2a will become equal to minus 1. So a become equal to minus 1 by 2. For the second one, 3 will become equal to 5b minus 1. So 3 plus 1 will become equal to 5b. So 4 will become equal to 5b. So b will become equal to 4 by 5। यही आंसर आया। The value of b is 4 by 5 and a is equal to minus 1 by 2। Okay, very good. Very good. तो ये ऑर्डर पेयर आप लोग को समझ में आ गया? ऑर्डर पेयर। Okay. Now let's go to the point. Let's go to the
पॉइंट। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, हम लोग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ए पॉइंट इज डिनोटेड बाय ए point is denoted by capital letter, denoted by capital letter, denoted by capital letter of English alphabet, English alphabet, ठीक है। सबसे पहला चीज, एक पॉइंट जो होता है उसको किससे डिनोट किया जाता है, किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा चीज ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट को लिखने का जो तरीका है उसको लिखा जाता है ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। ए पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज ऑर्डर पेयर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज ऑर्डर पेयर। उसको कैसे लिखा जाता है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा जाता है। दैट मीन्स एक पॉइंट अगर हमारे पास P है तो उसको लिखा जाएगा Px, y। उसको कैसे लिखा जाएगा, Px, y। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई पॉइंट है A2, 1 तो उसको क्या लिखा जाएगा, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा जाएगा। पॉइंट को हमेशा किस में लिखा जाएगा, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक दो पॉइंट और है हमारे पास। किसी भी पॉइंट को हम लोग किस में लिखेंगे, एक तो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और उसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब इस ऑर्डर पेयर के फॉर्म में जो x हमने लिखा, दिस वन इज द फर्स्ट वन, ये जो x हमने लिखा दैट इज नोन एज x कोऑर्डिनेट। उसको हम दो नाम से जानते हैं, x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, ABSCISSA। द x इज नोन एज x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा एंड द y, ये जो y हमने लिखा, दिस y इज नोन एज y कोऑर्डिनेट, this y is known by y coordinate, this y is known by y coordinate, or the other name of y coordinate is ordinate, ठीक है। other name of y coordinate is ordinate। ध्यान से देखिएगा, for an example, if I'm having one point say a 1, 2, तो इसमें एब्सिसा क्या होगा, what will be the value of abscissa, 1, very good। and what will be the value of ordinate, 2। आ गया समझ में, तो इसका एक एक नाम होता है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, से नंबर 2, -3, 4/5, -3, 4/5। so what will be the x coordinate, -3। the other name of x coordinate is abscissa, abscissa, very good। and what will be the y coordinate in this question, 4/5, very good, that is 4/5। what is the other name of y coordinate, ऑर्डिनेट, वेरी गुड, दैट इज ऑर्डिनेट। तो ये सबको समझ में आ गया, किसी भी पॉइंट को अगर हम लिखते हैं, किसी भी पॉइंट को अगर हम लिखते हैं तो उसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं और उसको हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और उस पॉइंट का जो पहला वाला एलिमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं या तो एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द पॉइंट दैट इज नोन एज वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। आया समझ में, दैट इज द नेम ऑफ ए, ओके। अब ध्यान से सुनिए, द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ वी कैन प्लॉट ए पॉइंट, दैट इज प्लॉट ऑफ ए पॉइंट, प्लॉटिंग ऑफ ए पॉइंट, प्लॉटिंग ऑफ ए पॉइंट इन कोऑर्डिनेट एक्सिस, इन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस में कैसे प्लॉट किया जाता है ये चीज हम लोग सीखेंगे अभी, ओके। द फर्स्ट पॉइंट, हैव यू सीन एनी नंबर लाइन, हैव यू सीन एनी नंबर लाइन, so what is actually a number line is, what is actually a number line, what is number line, what is number line, anyone, what is number line, हाँ बोलिए बोलिए, okay, what is number line, no one, Sir, all positive and negative number together with zero. that's wrong, number, Represents all numbers are known as number line.
all real numbers, all real numbers. Okay, so a line that represent all the rational and irrational number, that means a line that represent all the numbers, a line that represent all the numbers is known as number line. And in middle of that number we are having 0, and right side of the number, right side of the 0 we are having always a positive number. 0 के right side में क्या होता है, हमेशा positive number, and on the left hand side of the 0 we are having always a number, negative number. ऐसा ही ना होता है. Integer is the wrong definition. Why? Integer मतलब 1 2 3 4. अगर मेरे को बोला जाए कि 1.5 यहाँ पे exist करता है, yes, 1.5 will lie exactly between 1 and 1 2. So here we can find the number 1.5. If anyone asks me, can 2.1 lie in the number line? Yes, 2.1 exists in the number line. Here we can find after 2 we will find that 2.1 also exists in the number line. So number line is not set of all integers. Okay, number line is a line that contains all the real numbers. How? In which way? Like in the middle we will find 0, and at the right hand side of the 0 we will find positive number, and at the left hand side of the 0 we will find the negative numbers. Understood? सबको समझ में आ गया? Okay, okay. अब ध्यान से देखिएगा, हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है वो भी नंबर लाइन ही होता है. आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस इज आल्सो ए नंबर लाइन. कोऑर्डिनेट axis. And what is coordinate axis? That is x axis and y axis. X axis and y axis are also number lines. ठीक है, जो हमने x axis और y axis लास्ट क्लास में पढ़ा था वो भी क्या चीज होता है, नंबर लाइंस होता है. हाउ इट वर्क्स देखते हैं कैसे काम करते हैं ये. So what is the name of this horizontal axis and what is the name of this vertical axis? Very good. The vertical axis is known as y axis. x y axis. और ये हो गया हमारा origin. ठीक है, this one is known as what? The middle point is known as origin. और origin को हम हमेशा 0 से o से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, so कंसिडर x एक्सिस एज ए नंबर लाइन. आप सोचिए कि जो हमारा x एक्सिस है वो एक नंबर लाइन है, और ये जो origin है, origin is our 0, origin is our 0. तो 0 के राइट हैंड साइड पे कैसा नंबर आएगा? What kind of number on the right hand side of the 0? Positive numbers. Very good. That is 1 2 3 4 5 and so on. What will be the number on the left hand side of the 0? Negative number. -1 -2 -3 -4 ऐसे करके. ठीक है, और y एक्सिस जो है ये भी हमारा नंबर लाइन ही है. इसमें कैसे हम लोग लिखते हैं? ऑरिजिन के ऊपर, बिकॉज ऑरिजिन के ऊपर हम लोग पॉजिटिव नंबर लिखेंगे और ऑरिजिन के नीचे हम लोग नेगेटिव नंबर लिखेंगे. हियर 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 इस तरीके से. तो आपको समझ में आ गया कि एक्सिस में किस तरीके से काम करता है, हाउ इट वर्क्स, हाउ एक्सिस इज लाइक ए नंबर लाइन. In the x-axis, right hand side of the 0 will be positive number, left hand side of the 0 will be negative number. In the case of y-axis, upside, that is upward, above the x-axis, that means upside, the numbers that are above this origin will be positive and the below the origin will be negative. And this axis is known as x-axis and this axis is known as what? Y-axis. तो एक्सिस को हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन की तरह वर्क करता है. कोऑर्डिनेट एक्सिस आर आल्सो व्हाट? नंबर लाइंस. ठीक है, दूसरा पॉइंट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट. प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट, दिस इज आवर मेन पॉइंट. ओके, अब ध्यान से देखिएगा प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट में क्या हो रहा है. मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है P2,3. हमारे पास एक पॉइंट है P2,3. इसको हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट करना है. तो किस तरीके से प्लॉट करेंगे? दिस इज वेरी इजी. ध्यान से देखिएगा, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया. इसको हम लोग नाम दे देते हैं x डैश और इसको हम लोग नाम दे देते हैं y डैश. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा 1 2 3 4 5. ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा -1 -2 -3 -4. ओरिजिन के ऊपर हमें पॉजिटिव मिलेगा 1 2 3 4 5. ओरिजिन के नीचे हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा -1 -2 -3 -4 -5. ओके,
So what is the coordinates of this point? The coordinate of this point P is 2, 3. ठीक है. So what is x coordinate of this point? 2. So x coordinate of this point is equal to 2. What is y coordinate? y coordinate is 3. ध्यान से देखिएगा इस p पॉइंट को कैसे प्लॉट किया जाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस में. x कोऑर्डिनेट में इसका वैल्यू है 2 और कुछ भी चीजें स्टार्ट होगा ऑलवेज इट विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन. एनीथिंग, एनी पॉइंट, एनी काउंटिंग विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द वेयर? ओरिजिन. ध्यान से देखिएगा हम कैसे करेंगे. x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 2 है तो x कोऑर्डिनेट मतलब क्या, x आ गया तो x एक्सिस पे वो 2 डिस्टेंस जाएगा. x एक्सिस पे कितना जाएगा 2 और ये +2 है कि -2? तो +2 किधर है, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में कि ओरिजिन के राइट हैंड साइड में? राइट हैंड साइड में. सो हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे 2 डिस्टेंस. तो 2 डिस्टेंस मतलब यहां तक आप ये येलो वाला लाइन दिख रहे होंगे तो 2 डिस्टेंस हम लोग यहां तक पहुंच गए. व्हाट इज द डिस्टेंस इन y कोऑर्डिनेट में कितना डिस्टेंस है? 3. 3 ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ. तो ऊपर की तरफ हम लोग क्या करेंगे, 3 डिस्टेंस जाएंगे. ठीक है, ऊपर की तरफ हम लोग क्या करेंगे, 3 डिस्टेंस जाएंगे लाइक दिस. ऊपर की तरफ हम लोग 3 डिस्टेंस गए. जैसे हम लोग ऊपर की तरफ 3 डिस्टेंस गए तो हमारे पास एक पॉइंट मिल जाएगा, वही पॉइंट हो जाएगा P और उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2, 3. और ये भी डिस्टेंस, हाँ ये भी डिस्टेंस हम लोग देखेंगे तो 2 ही है, चाहे कैसे भी जाए. ठीक है, आया समझ में? तो ये 2, 3 कैसे प्लॉट किया गया, समझ में आ गया? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा. एक दूसरा पॉइंट लेते हैं हम लोग Q. ठीक है, और Q का हम लोग ले लेते हैं -1, 4. Q का कोड, हाँ -5 और -4 सेम थिंग. -1, 4. तो इसमें x कोऑर्डिनेट कितना है हमारा? -1. y कोऑर्डिनेट कितना है? y कोऑर्डिनेट है हमारा 4. तो इस पॉइंट को अगर हमें प्लॉट करना है दैट इज -1, 4. तो कैसा होगा, -1 जो भी स्टार्ट करेंगे हम कहां से स्टार्ट करेंगे, वो विल स्टार्ट फ्रॉम दी ओरिजिन. ठीक है, अगर हम ओरिजिन से -1 हमको जाना पड़े तो लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड जाना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड. तो x में हम लोग चलेंगे -1, y में कितना जाना पड़ेगा 4. 4 जाने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा कि नीचे है? ऊपर. तो 4y में जाएंगे तो हमारे यहाँ पे 4 के बराबर, एकदम 4 के बराबर. ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा Q, दैट इज -1, 4. समझ में आया? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे इस तरीके से. लेट्स से वी आर हैविंग अनदर पॉइंट दैट इज r. r इज -2, -5. r एक पॉइंट लेते हैं -2, -5. x कोऑर्डिनेट कितना है? -2. y कोऑर्डिनेट -5. सो हम लोग जो भी चीजें स्टार्ट करेंगे हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, वो विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी ओरिजिन. तो x कोऑर्डिनेट में कितना गया है -2. तो -2 जाने के लिए x में लेफ्ट हैंड साइड में जाना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड में? तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग चले गए -2. उसके बाद हमें y कोऑर्डिनेट में कितना जाना है, -5. सो y कोऑर्डिनेट में कितना जाना है, -5. अब -5 ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे की ओर जाएगा? वेरी गुड, y में नीचे की ओर कितना जाएगा, -5. तो ये पॉइंट कहां पे, एग्जैक्टली 5 के आसपास यहां पहुंचेगा. सो दिस पॉइंट विल बिकम पॉइंट r. सो r पॉइंट विल बी -2, -5. एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं, इट्स गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग. वन मोर एग्जांपल. ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं PQRS. ठीक है, S पॉइंट लेते हैं हम लोग 3, -2. यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ x कोऑर्डिनेट? एब्सिसा. तो एब्सिसा कितना है यहाँ पे 3. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ y कोऑर्डिनेट? ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे? -2. तो जो भी चीजें स्टार्ट करेंगे हम लोग ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो एब्सिसा में कितना डिस्टेंस गया, एब्सिसा में कितना 3, नॉट 2. 3 डिस्टेंस गए, 3 डिस्टेंस राइट हैंड साइड. तो 3 डिस्टेंस राइट हैंड साइड मतलब यहाँ पे. ऑर्डिनेट में कितना डिस्टेंस गया, -2. -2 कहां पे आएगा,
-2 एग्जैक्टली यहाँ पे इसके बराबर -2. सो दिस पॉइंट विल बिकम व्हाट? दिस पॉइंट विल बिकम एस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विल बी 3, -2. आ गया समझ में पॉइंट को कैसे प्लॉट किया जाएगा? कोई भी पॉइंट दिया जाएगा तो चलिए अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हाँ पूछिए पूछिए पूछिए. तो मान लीजिए कि z रहा 0,1. 0,1. Very good. Very interesting question. 0,1. Let's PQRS. Let another consider that is 0,1. ठीक है 0,1. तो इसमें x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0. x कोऑर्डिनेट 0. y कोऑर्डिनेट कितना हो गया? y कोऑर्डिनेट हो गया 1. हम जो भी चीजें स्टार्ट करेंगे वो कहां से स्टार्ट करेंगे? वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी ओरिजिन. ठीक है तो x कोऑर्डिनेट में कितना डिस्टेंस गया? ये कहां चला गया? 1 सेकेंड. ओके x कोऑर्डिनेट में कितना डिस्टेंस गया? 0. 0 मतलब वो कहीं नहीं गया. नो डिस्टेंस राइट. उसका मतलब वो यहीं पे है. अभी तक यहीं पे है. y में कितना डिस्टेंस गया? 1. y पे 1 डिस्टेंस गया मतलब y वाला कहां जाता है? ऊपर नीचे जाता है. सो दैट मींस ये ऊपर जाएगा कहां पे? यहां पे. सो दिस पॉइंट t पॉइंट विल लाई हियर दैट इज 0,1. ये y एक्सिस पे लाई करेगा. ये पॉइंट आया समझ में? 0,1. इस चीज को हम लोग लिखेंगे बढ़िया से. अभी बस सिंपल सा चीजें हम लोग समझते हैं. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ये जो p पॉइंट है p 2,3 ये कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहा है? 2,3 कौन से क्वाड्रेंट पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट. मैंने बताया था इसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है इसका नाम है सेकंड क्वाड्रेंट. इसका नाम है थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है और इसका नाम है फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है ध्यान से देखिएगा. तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जो हमारा P पॉइंट है 2,3 लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट. लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट. जो Q पॉइंट है Q पॉइंट का -1,4 ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा? लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट. लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट. ठीक है उसके बाद -2, -5 दैट इज पॉइंट R. पॉइंट R -2, -5 ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा? थर्ड. लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट. वेरी गुड. द S इज व्हाट पॉइंट? 3, -2 ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है अब द फाइनल पॉइंट T. ये जो T पॉइंट है 0,1 ये कहां पे लाई करेगा? कौन से क्वाड्रेंट पे? सेकंड क्वाड्रेंट. ये तो यहां पे लाई कर रहा है. तो ये किसी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करेगा. ये y एक्सिस पे लाई करेगा. समझ में आ रहा है? ये कहां पे लाई करेगा? y एक्सिस पे. लाइज ऑन y एक्सिस. y एक्सिस में बन रहा है ना वो पॉइंट. लाइज ऑन y एक्सिस. आपको समझ में आया कैसे हुआ ये? चलिए मैं एक बड़ा ही छोटा सा एग्जांपल पूछता हूं. सेकंड क्वाड्रेंट का मेरे को एक पॉइंट का एग्जांपल बताइए. सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मेरे को जाना है कोई भी एक एग्जांपल बताइए. एनी पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट. -1,2. ओके 1 सेकेंड. सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट का एग्जांपल -1,2 -1,1. ओके एनीवन एल्स एग्जांपल? -1,3. Any other number also you can take, no problem, other than -1. -5,4. यस एक चीज ध्यान में आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा x कोऑर्डिनेट का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है. नेगेटिव आ रहा है कि नहीं? एंड y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है ध्यान से देखिएगा हो क्या रहा है. सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचा जा सकता है? सेकंड क्वाड्रेंट में पहले मेरे को लेफ्ट जाना पड़ेगा फिर मेरे को अप जाना पड़ेगा. है कि नहीं? पहले मेरे को लेफ्ट जाना पड़ेगा ओरिजिन से फिर मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा. तब हम कहां पहुंचेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे. अगर हम ओरिजिन से लेफ्ट जाएंगे तो मेरा x कोऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज नेगेटिव. है कि नहीं? और अगर मैं ऊपर जाऊंगा देन माय y कोऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है
अब एक चीज बताइए, अगर मेरे को फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, मेरा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? इफ आई वांट टू गो टू द फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचना पड़ेगा? व्हाट इज द वे टू रीच द फोर्थ क्वाड्रेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे राइट साइड जाना पड़ेगा, देन मुझे बिलो जाना पड़ेगा. इफ आई विल गो टू द राइट साइड, देन माय वैल्यू विल बी, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? एंड इफ आई गो डाउन, देन माय वाई कोऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि नीचे जाने के लिए वाई का वैल्यू नेगेटिव है. देखिए ऊपर जाएंगे तो वाई का वैल्यू पॉजिटिव है. आया समझ में? सो व्हाट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इन द थर्ड क्वाड्रेंट? कैन एनीवन टेल मी? In the third quadrant, what will be the x coordinate in what? In the third quadrant, what will be x coordinate and y coordinate? Will it be positive or negative? X coordinate. And what will be y coordinate? Negative. Very good. To reach the fourth, to reach the third quadrant from the origin, at first I have to go to the left hand side, right? Then again I have to go down. So when I will go left hand side, then my x coordinate will become negative, and when I will go down, then my y coordinate will become negative. So इन सब को देखते हुए हम कुछ चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं. मान लेते हैं मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है. फर्स्ट क्वाड्रेंट, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. In first quadrant, x coordinate, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है. y कोऑर्डिनेट जो होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है. इन सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा? x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव, ठीक है. इन थर्ड क्वाड्रेंट x कोऑर्डिनेट विल बी negative and y coordinate negative. Third quadrant में negative. In the fourth quadrant, x coordinate will be always positive and y coordinate negative. Y coordinate negative. ठीक है. तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल है, कुछ ये हमारा तरीका है जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है. आप लोग को याद रखना है. एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अब मान लीजिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल पूछता हूं. सिंपली आपको देख के बताना है. a -1,3 कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट, बिकॉज x coordinate is negative and y coordinate is positive. Simply by watching I can say that this will lie in the second quadrant. आया समझ में? नंबर बी, -3, -70 कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट. By simply watching I can say that it will lie in the third quadrant. आया समझ में सबको? ओके ओके ओके. तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है, आप लोग सब लोग डायरी में लिख लेंगे अपना, ठीक है, डायरी, ठीक है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फर्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम योर बुक. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट एक्सरसाइज, ये आपका होमवर्क है. हाँ, आर एस अग्रवाल, यस, आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा और एनसीईआरटी जो आपके पास बुक है, ठीक है, उसका फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करके सबमिट करना है. सबमिशन डेट इज, आज हो गया 18, कल हो गया 19, 01/2022 बिफोर 2 PM, ठीक है. ये पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, आप लोग अच्छे से लिख लेंगे. तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग, यस प्लीज, बार ग्राफ, व्हिच बार ग्राफ यू आर सेइंग? Oh, that means graph paper. You mean graph paper, right? So graph paper में अभी मैंने सिखाया नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मैं ग्राफ पेपर में सिखाऊंगा, ठीक है. तो इस बार सिंपली आप बना लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं ग्राफ पेपर कैसे यूज करते हैं वो सिखाएंगे, ठीक है.
Okay, very good. No problem. If you know, then you can do it. No problem. Okay, then thank you. Thank you very much. See you in the next class. Okay.